बीजेपी ने पार्टी के सीनियर लीडर सूफी यूसुफ को मुबैना तौर पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर बताओ नोटिस जारी किया है। बीजेपी ने सूफी यूसुफ से 7 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा। बीजेपी ने कार्रवाई जेर इल्तवा रहने तक बराह रास्त या बिलवास तौर पर मीडिया के साथ बातचीत न करने की भी हिदायत दी है। सूफी यूसुफ को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि वो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं और अपने सियासी मामलात में वाज़ेह तौर पर बेज़ाब्तगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। IIT जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने इसका इफ्तिताह किया और इस मौके पर GOC शुमाली कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। IIT जम्मू का स्टाफ और तलबा भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इस सिंपोजियम के लिए 180 सनती शिराकतदारों ने इंदराज कराया है। इस मौके पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी की अहमियत बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। शुमाली कमांड और IIT जम्मू के दरमियान ताउन फौज और तालीमी इदारों की एक अच्छी मिसाल है। इस पहल का मकसद नए स्टार्टअप्स के एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है और इसका मकसद शुरा के तकनीकी इल्म के बुनियाद को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की दिफाई बरामदात में इजाफा हुआ है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल माहौल दोस्त अंदाज में किया जाना चाहिए। Institutions like IIT Jammu are hubs of innovation where the brightest young minds are nurtured and guided to push the boundaries of what is possible. The main objective of the Northern Tech Symposium 2023 is to augment technological knowledge base of participants and acquaint them with state-of-the-art technologies and commercially off-the-shelf solutions, or the COTS as we say, available in the defense sector. It is with the underlying aim to create awareness of contemporary technologies and hardware solutions available with Indian defense manufacturers under Atmanirbharata to meet ever-evolving dynamics in Northern Command with indigenous, innovative and future-proof technologies. The armed forces, in keeping with the initiatives of the Government of India, are committed to provide the necessary push and impetus to our defense manufacturers. The fact that India's defense exports have risen to an all-time high and that foreign governments are keen to procuring Indian weapons and systems amply establishes the potential that indigenous defense sector holds. The event is expected to enable greater engagements with Indian private sector, R&D organizations, giving an impetus to Atmanirbhar Bharat campaign. The concept of integrated warfare, where the Army, Navy, Air Force and other branches of the armed forces work seamlessly together, is essential in today's complex security environment. We must leverage technology to enhance interoperability and coordination among our forces. Furthermore, the defense sector is not immune to the broader challenges of sustainability and environmental impact. We must seek solutions that not only bolster our national security but also mitigate the environmental footprint of our operations. Use of technology must be made in an environmentally conscious manner. Let us embrace this opportunity to push the boundaries of our collective knowledge and pave a way for a safer, more secure world. जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, टेक्नोलॉजी में तरक्की जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान हमारे खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह के सेमिनारों से मौसर इंसदाद ड्रोन टेक्नोलॉजी में मदद करेगी। ऑफिसर कमांडिंग नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। सर, आज जो टेक सिंपोजियम यहाँ पे हुआ है, कितना बड़ा एक फायदा हो सकता है जब आर्मी, इंडस्ट्री और एकेडमिया एक साथ में? देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये है कि अभी तक ऐसे जो होते थे नॉर्थ टेक सिंपोजियम जैसी जो चीज़ है वो यहाँ पहली बार हुई है जो जम्मू कश्मीर में हुई।
तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को यहाँ पे एक इकोसिस्टम मिलने वाला है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे लोकल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। जहाँ तक मिलिट्री का फायदा है, जो ट्रॉयका जैसे आपने सुना तो ओपनिंग एड्रेस में कि मिलिट्री, एकेडमिया और इंडस्ट्री तीनों एक साथ मिल बांट के यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने आगे बढ़ना है और टेक्नोलॉजी को कैसे हमने एक्सप्लॉयट करना है। क्योंकि आज आप देखेंगे मैन एंड मशीन का जो कॉम्बिनेशन है वो निहायत जरूरी है। जितना अच्छा कॉम्बिनेशन उतनी अच्छी काबिलियत। सर, जैसे आपने कहा कि मैन और मशीनरी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अभी हमने देखा है सबसे बड़ा एक जो चैलेंज है वो ड्रोन का चैलेंज है। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो सिम्पोजियम में जो इनोवेशंस हैं, किस तरह की इनोवेशंस हैं जिससे आर्मी उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो एडवर्सरीज हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दे सके? बिल्कुल सही है, क्योंकि ड्रोन एक ऐसा चैलेंज है, स्पेशली अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, ये चैलेंज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी लिए यहाँ पर जो काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट आया हुआ है वो हमारे लिए देखना निहायत ज़रूरी है और इसमें टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इम्प्रूव होती जा रही है। तो यहाँ बैठ के हम यही सोच विचार करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे काम आने वाली है और कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे आगे आने वाले दिनों में काम आने वाली है, जिसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करेंगे तो कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के सेमिनार, क्योंकि आगे जो मॉडर्नाइजेशन, आगे जो चैलेंजेस है उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा एक अंतिम कदम है और उससे हमारे और भी कदम निकलने वाले हैं। तो ये जो है हमारी एक शुरुआत है। छोटे छोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें हमें क्या फायदा होगा यहाँ पर, चूंकि हम तीनों बैठे हुए हैं यानी मिलिट्री, इंडस्ट्री और एकेडमिया, आप देखेंगे यहाँ पर हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में सोच विचार का मौका मिलेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।